Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, let's quickly recap what we did in the previous lesson. As you know that we are on unit number 10. We are on unit number 10 and today is its eighth lecture. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So you have to answer a few questions. Quickly tell me, what does air provide to plants and animals? हवा पौधों को और जानवरों को क्या चीज प्रोवाइड करती है? Quickly think. वेरी नाइस, लाइफ गैसेस. एंड कैन यू नेम कि कौन सी लाइफ गैस जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड की जाती है और कौन सी लाइफ गैस जो है वो एनिमल्स को प्रोवाइड की जाती है? ऑक्सीजन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स. वेरी गुड. नाउ क्विकली टेल मी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेम्परेचर इन अ हैबिटेट. क्विकली टेल मी कि हैबिटेट में टेम्परेचर का क्या रोल होता है? वेरी गुड. It helps the plants and animals to grow properly. Very good. So my dear students, we were discussing about the environmental conditions like air, water, temperature. Today we will discuss about some other environmental factors which are important in a habitat. Those are soil and light. These two environmental conditions. बाकी जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं, लाइक वाटर, एयर एंड टेम्परेचर. तो आज हम देखेंगे कि कैसे सॉइल और लाइट जो है वो एक हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स को हेल्प आउट करती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. And it is who created the night and the day and the sun and the moon. They float each in a orbit. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो एक निज़ाम के तहत बनाई है, जैसे कि दिन का आना, रात का आना, और जैसे कि सूरज, चांद, सितारे, ये सब जो हैं वो एक निज़ाम के तहत जो है वो चल रहे हैं, एक ऑर्बिट में चल रहे हैं. इसी तरीके से जो है तमाम हैबिटेट्स और एनवायरनमेंट्स जो हैं उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी बनाई हैं जो कि एक निज़ाम के तहत चल रही हैं. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading questions. Quickly answer them. Name environmental conditions necessary for living things to survive. हम बहुत सारी environmental conditions पढ़ भी चुके हैं. आज भी हम कुछ environmental conditions discuss करेंगे. Quickly name them. Water, air, temperature, soil, and light. These are some basic environmental conditions. So my dear students, now quickly open page number 89 in your books. I hope everybody has opened page number 89. So my dear students, quickly look at an environmental condition, soil. Let's read it out. Soil is the uppermost layer of the earth. मिट्टी जो कि आपको नज़र भी आती है, आप जब चलते फिरते हैं ग्रास के नीचे, वैसे भी जब आप लैंड के ऊपर चलते हैं तो आपको मिट्टी नज़र आती है. वो हमारी ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है. ठीक है. इन प्लांट्स, सॉइल टाइप is major deciding factor for the types and quality of the crops to be grown in that particular habitat. This is because minerals, water, microorganisms, etc. all fluctuate in different soil types. So my dear students, जितने भी plants, crops, trees जो हैं आपके इर्द गिर्द grow करते हैं और जो different crops हम खाते हैं जैसे कि wheat, rice, maize, oats, हम जितनी भी ये crops खाते हैं ये मुख्तलिफ तरह की soil में grow करती हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मिट्टी भी मुख्तलिफ किस्म की होती है? Yes, the amount of water, presence of minerals and microorganisms change the type of soil. और इसी तरह से डिफरेंट तरह के प्लांट्स और डिफरेंट तरह की जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट सॉइल में ग्रो करती हैं. Okay, my dear student, now let's quickly move towards another environmental condition which is called light. Quickly read with me. Light is also an environmental factor. Sun is its primary source. It does not only help us to see around, but affects our skin color,
In plants, food making, flowering and seed germination directly depends upon sunlight and its intensity. So my dear students, एक और बहुत ही important environmental factor है light, और इसका सबसे प्राइमरी या सबसे बड़ा सोर्स जो हमारे अर्थ पे है दैट इज सन. उसी की हीट और लाइट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स को या उनके हैबिटेट को इफेक्ट करती है. प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में ये स्किन कलर को इफेक्ट करती है. इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर उनकी फूड मेकिंग प्रोसेस जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इसी तरीके से जो है वो लाइट जो है उसकी प्रेजेंस हमारी दुनिया में, हमारे अर्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हैबिटेट्स के अंदर उनकी ग्रोथ के अंदर या उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. तो यहाँ मैंने आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की है. अब इस सॉइल के अंदर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइट सैंडी सॉइल, मीडियम लूम, हैवी क्ले सॉइल, स्टोनी सॉइल, कैल्केरियस सॉइल, ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट वाटर कंटेंट है, और इसी वजह से इसके अंदर डिफरेंट जो है वो क्रॉप्स ग्रो करती हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइट सैंडी सॉइल जो है उसमें रे, बार्ले, रूट क्रॉप्स और वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं. इसी तरह हैवी क्ले सॉइल में आप देखें वीट, बीन्स और ग्रास ग्रो करती है. सो ये एक एग्जाम्पल है कि इसी तरीके से जो सॉइल्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, वाटर कंटेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसी तरीके से फिर उसमें डिफरेंट तरह के प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड डिफरेंट जो ट्रीज हैं वो उसमें ग्रो करते हैं. So my dear students, from here we will move forward towards your practice, and for that on page number 89 there is given a supervised activity number 2. So अब इस activity में हमें क्या करना है? Let's quickly read it out. Effect of environmental factors on plant. ठीक है, जो environmental factors हैं like sunlight, air, water and soil, उनका प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसको हम आज जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है देखेंगे. सो द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड इज 3 फ्लावर पॉट्स. मैंने जो है वो बीन पॉट्स लिए थे और उनको मैंने कवर करके जैसे इस प्रैक्टिकल में बताया गया है मैंने उनको रखा था. मैंने उसकी पिक्चर्स क्लिक की हैं, वो मैं आपको फर्दर आगे अभी दिखाती हूँ. इसके अलावा हमें पॉलीथीन शीट चाहिए, 3 फ्लावर पॉट्स एंड पॉलीथीन शीट. देन व्हाट टू डू? Label the 3 pots with A, B and C. Place pot number A in dark. हमने pot number A को जो है वो dark में रखा. Cover pot B with polythene sheet. Place pot B and C in sunlight. Water the 3 pots daily. अब हमने क्या किया कि हमने तीनों pots को जो है वो A, B, C label कर दिया. pot A को जो है वो हमने dark में रखा, pot B को और pot C को हमने light में रखा. लेकिन पॉट बी को हमने पॉलिथीन कवर से या शॉपर से, शॉपिंग बैग जो आपके पास वाइट कलर का होता है उसके साथ हमने उसको कवर कर दिया था. उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ऑब्जर्व करना है आफ्टर 1 वीक. 1 हफ्ते के बाद आप ये प्रिपेयर कर लें सब कुछ और फिर उसको आपने 1 हफ्ते के बाद ऑब्जर्व करना है. कलेक्ट द 3 पॉट्स, रिमूव द पॉलिथीन शीट फ्रॉम पॉट बी, ऑब्जर्व द 3 प्लांट्स. अब आपने तीनों पॉट्स को जो है वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट कि मैंने जो है 1 हफ्ते के बाद जब रिकॉर्ड किया था तो मेरे पॉट्स के अंदर क्या हुआ. मैंने थोड़ा सा स्विच किया. मैंने पॉट ए को जो है वो डार्क लाइट में रखा, पॉट बी को जो है मैंने डार्क में रखा, और पॉट सी जो है उसको मैंने पॉलिथीन से कवर किया बट इट वॉज ऑल्सो इन लाइट. सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस. ग्रोथ जो है पॉट ए में और पॉट सी में सिमिलर हुई है. देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है. तो दैट मीन्स कि लाइट जो है और वार्मथ जो है वो पॉट ए और सी दोनों को मिल रही थी. स्टिल पॉट सी वॉज कवर्ड क्योंकि हमने पॉट सी को फिर भी कवर किया था, लेकिन मैंने इसको ट्रांसपेरेंट पेपर से, सी थ्रू पेपर से कवर किया था. तो लाइट कुछ ना कुछ जो है वो पॉट सी को, प्लांट को मिल रही थी. इसके बाद आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं पॉट बी में प्लांट ग्रोथ के अंदर, क्योंकि लाइट नहीं मिल रही थी इसको. सो ग्रोथ आपको सिमिलर नजर आ रही है कि ग्रोथ जो है वो ठीक नहीं हुई. द लीव्स हैव नॉट ग्रोन प्रॉपरली, ठीक है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशन जिसमें लाइट जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। और जहां पे लाइट प्लांट को मिलेगी वहां उसको वार्मथ भी मिलेगी, और वार्मथ एंड लाइट की वजह से जो है प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है। और हम देख सकते हैं कि पॉट बी में देयर इज नो प्रॉपर ग्रोथ, लीफ इज ऑल्सो बर्न्ड, ठीक है, ये थोड़ा सा खराब भी हो गया है यहाँ से। सो हम अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इस जगह पर। क्या आप कहेंगे, मैंने पॉट ए में जिस तरह से लिखा था कि ग्रोथ वॉज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इसी तरह आप पॉट बी में कहेंगे कि देयर वाज नो ग्रोथ, पॉट सी में कहेंगे वी आल्सो ऑब्जर्व्ड ग्रोथ ऑफ लीव्स इन पॉट सी. So this is how you can do this practical, but it will be supervised by your teacher or an adult at home. So my dear students, now let's quickly move forward towards your towards practice on page number 96, which you can see what is soil. Quickly answer this. Soil क्या होती है? It is the uppermost layer of the earth. Very good. Now quickly tell me, how does light affect plants and animals? Quickly think about it. Yes, in animals and plants, it helps the plants and animals to grow properly. ठीक है? And in plants, it helps the plants to prepare their food. So light जो है वो बहुत ही important environmental condition है. So my dear students, your homework for today is a worksheet number 10. You will write down your name and your class on the top. और बहुत easy सी है ये worksheet. आपको करना क्या है? Directions आपको given है कि in front of each environmental factor write its role in the survival of living things. तो हमने जो है सारी environmental conditions अब पढ़ ली हैं, and now you are able to write कि ये कैसे हमें survival में help out करती हैं. Just like water, it helps us in drinking, it helps the plant in transfer of nutrients from the roots to the all over the plant. Then comes the air. Air में हमारे लिए life gases होती हैं like oxygen and carbon dioxide. Then comes temperature. It helps the plants and animals to grow. Then comes soil. It helps the plants to grow properly, ठीक है, different types of plants जो हैं वो different soil के अंदर जो हैं वो grow करते हैं. Then comes light. It also helps the plants to prepare their food. So my dear students, this is how you will write about each environmental factor, that how they help the plants and animals in survival. Okay, my dear students, now is the time for wrap up. Water, sunlight, temperature, soil and air are necessary environmental factors in a habitat. एक हैबिटेट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पानी, हवा, टेम्परेचर, लाइट और सॉइल जो है, ये बहुत जो है अहम रोल प्ले करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. So my dear students, I hope you have enjoyed the lesson. Keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.